A very good afternoon, 8th class. How are you all? I hope you all are fine. So students, today now we will read our next chapter, and this is Women, Caste and Reform. Clear, students? First of all, let us understand what we will read in this chapter. We will read in this chapter social and religious evils in 19th century in India, contribution of different reformers in abolishing those evils, and role of women in social reform. Students, this chapter is about status of women in India in 19th century. The women discrimination was on the peak, and they were treated like a slave or maid even in their houses. Also, the other discriminative issue of the society which stopped development in the society and personal development, especially the poor and untouchables. Clear? It means हमारे समाज में बहुत तरह की बुराइयाँ फैली हुई थी, जिसमें कि वीमेन डिस्क्रिमिनेशन भी उनमें से एक था कि औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता था और उनके साथ ऐसा ही घरों में ट्रीट किया जाता था। और उनके अलावा बहुत से और भी डिस्क्रिमिनेटिव इशू थे हमारी सोसाइटी में। वो क्या थे? एक तो कास्टिज़म था, एक अनटचेबल्स था और एक बहुत जो गरीब है स्पेशली उनके साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाता था। क्लियर? Apart from women discretion, there were many other wrong traditions were followed. Some of them are mentioned as under. उनके अलावा और क्या चीज़ें थी? एक सती सिस्टम था, मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्क दे डू इन द सोसाइटी। और मेल डोमिनेशन मतलब सिर्फ पुरुष प्रधानता ही माना गई थी कि जो पुरुष बोलेंगे वही समाज में उचित होगा। और एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी था, उसमें काम के आधार पर ही लोगों के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। चाइल्ड मैरिज, फिर उसके बाद बंधुआ मजदूरी एंड गुलामी, राइट टू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट and unethical ways of medical treatment. Okay, so ये सभी बुराइयां हमारे समाज में उस टाइम बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। अब उसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसी डेट लाइन्स के इस चैप्टर्स में दी गई हैं, लेकिन इनको जानने से पहले हम इस चैप्टर्स के बीच में जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं जो अभी हमने पढ़ी। स्टूडेंट, सती सिस्टम। अब ये सती सिस्टम क्या था? इन अर्लियर डेज, सती, a virtuous woman, was a custom where a widow has to immolate herself on her husband's pyre or committed suicide in another fashion, willingly or against her wish. It means a system in which women was burnt on the pyre of her husband. It means जब किसी भी स्त्री का पति अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो उस औरत को उनके साथ जलाने के लिए रेडी किया जाता था, चाहे वो उसकी इच्छा हो या इच्छा नहीं हो, ज़बरदस्ती उसके साथ उसके पति के साथ उसको जला दिया जाता था। सो इसी को हम सती प्रथा के नाम से जानेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज सती सिस्टम।
child marriage, no education to girls, no widow remarriage, अगर कोई विधवा है तो उसकी शादी दोबारा से नहीं होगी, पर्दा सिस्टम और कास्टिज्म ऑल्सो इन आवर सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काम के बेस पर उनके साथ बिहेव किया जाता था। The practice was initially legalized by the colonial British officials, specifying conditions when sati was allowed. Then the practice was outlawed in 1829 and followed up by the law in the same direction by the authorities. The general ban for the whole of India issued by Queen Victoria in 1861 में इसको बैन किया गया. In Nepal, sati was banned in 1920. The Indian Sati Prevention Act from 1988 further criminalized any type of aiding, abetting and glorifying of sati. Over the time, education, various awareness activists and various reform movements played a great role in changing the social status of women in the society. It means students, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे. During the first half of the 19th century, many रिफॉर्मिस्ट मतलब जो इन बुराइयों के खिलाफ थे और समाज को इससे दूर करना चाहते थे इन बुराइयों को, वो उन्होंने क्या किया यहाँ पर पर्टिकुलरली इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड साउथ केम फॉरवर्ड टू इरेडिकेट द सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग in the society, and they realized, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, that these social evils are hindering the progress of the nation and making the populace backward. It means ये जो बुराइयां हैं हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देंगी और हमें बेशक हमारे पास सारी सुविधाएं क्यों ना हो, हम बहुत पीछे जाते जाएंगे. Okay, to transform the society, many Indians formed associations which worked for betterment of the masses. और बहुत से रिफॉर्मिस्ट मतलब होते हैं समाज सुधारक, जो समाज को सुधारने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए आगे आए और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही मेन रोल प्ले किया कि इन बुराइयों को दूर किया जाए और सभी के साथ इक्वली बिहेव हो हमारी सोसाइटी में और सभी लोग आगे बढ़ते चले जाएं. ओके, सो लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द इनलाइटेंड पर्सनैलिटीज़. आज हम उन्हीं इनलाइटेंड पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हु वर्कड डेडिकेटेडली टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, और जिन्होंने बहुत ही डेडिकेट होकर अपनी सोसाइटी के लिए काम किया और वो आगे बढ़ते चले गए. क्लियर. और हम रिफॉर्मिस्ट के बारे में जानने से पहले हम कुछ और बुराइयों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में थी. वो क्या क्या थी? मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. Men were allowed to do anything of their choice, but women were treated as slaves even in their house. Men, it means हर आदमियों को, मैन को हर काम करने की छूट मिली हुई थी, लेकिन औरतों को उनके घर पर बिल्कुल गुलामों की तरह रखा जाता था. दे वर नॉट अलाउड एजुकेशन, choice husband or second marriage. Okay, and however in some parts men were allowed. जो छूट मैन को मिली हुई थी वो सोसाइटी में औरतों को नहीं दी गई थी. मोर देन वन मैरिज,
The people were divided on the basis of work they perform and on the basis of their caste. You know very well, हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और उन्हीं के उनके कास्ट के बेस पर ही उनके साथ बिहेव किया जाता था। जैसा काम जिसको मिला गया था उसी के साथ ही वो वैसा बिहेव सोसाइटी में करते थे। The higher caste people never allow them education and discriminated as untouchables. और जो हायर कास्ट पीपल थे, हायर सोसाइटी से बिलोंग करते थे, मीन्स क्षत्रिय और ब्राह्मण, वे इन लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको अलाउ नहीं करते थे फॉर एजुकेशन, और उनके साथ कैसा बिहेव रखते थे, अनटचेबल्स, और उनको सोसाइटी से दूर रखते थे, अपनी सोसाइटी से। उसके बाद चाइल्ड मैरिज, एन अर्ली एज मैरिज वेयर द बॉय एंड द गर्ल आर इनोसेंट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज सिस्टम। ओके, इट मीन्स जब बॉय एंड गर्ल आर इनोसेंट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझते थे, और बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। एज पर इंडियन जुडिशरी सिस्टम, एज ऑफ अ गर्ल under 18 years or of the boy under 21 year is considered as child marriage। और अगर हम बात करें हमारे एज पर इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, तो वहाँ पर क्या दिया गया है कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी और एक बॉय की जब उम्र एज होगी 21 ईयर्स, तब वो कंसिडर्ड होंगे ओके शादी के लिए। In child marriage, both boy and the girl are not developed mentally and physically, thus resulting क्या होता था, क्या रिजल्ट निकलता, into mental stress and medical complications. Most child marriages involve underage women in poor socio-economic conditions. Clear? और उसके बाद हम बात करेंगे बंधुआ मजदूर, मीन्स बॉन्डेड लेबरर्स एंड गुलामी। इन द अर्लियर टाइम्स द अपर कास्ट पीपल हु एक्चुअली rule the village people distribute loans in various kind to needy poor people, okay, and in return some of all family members were booked for labor work at their farm or at home। अगर किसी ने लोन लिया है और उस लोन को चुका नहीं पाया, उन पैसों को चुका नहीं पाया, तो उसके बदले में क्या किया जाता था कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स को उसके वहाँ पर खेतों में या फार्म में काम करना पड़ता था और वहाँ से उनको छोड़ा नहीं जाता था। ओके, नाउ स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। In the olden times, the society was based on and caste and the type of work they do. Okay, and the lower caste people, Shudra, who were untouchable, and they were not allowed to enter temples or drink water from the well. Okay, and meant चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड एजुकेशन। इट मीन्स जो अपर कास्ट के जितने भी सोसाइटी में बिलोंग करते थे पर्सन, वो इनको अपने वहाँ पर अलाउ नहीं करते थे, ना तो टेंपल में उनको एंट्री देते थे और ना ही अपने कुओं से उनको पानी लेने देते थे। अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, अब ये क्या था, डिस्पाइट अवेलेबल मेडिकेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथ, यूनानी मेडिसिन बाय द नॉन रिस्पेक्टिव पीपल, सिर्फ उन्हीं के लिए था जो नॉन और रिस्पेक्टिव पीपल थे, ये चीज़ें उन्हीं को ही मुहैया कराई जाती थी। द पीपल फॉल प्रे इन द हैंड्स ऑफ साधुस एंड बाबाज एंड मौलवीज हु वर ट्रीटिंग पेशेंट विद अननेचुरल अनहेल्दी वेज, और क्या होते थे, बिना सुविधाओं के मिलने के बावजूद या
एजुकेशन तो थी नहीं हमारी सोसाइटी में, तो बहुत ही जल्दी लोग साधुओं के हाथ में जो भी बीमारी आती थी वहाँ पर अपने को सौंप देते थे, चाहे वो उनके साथ किसी भी तरह का ट्रीटमेंट क्यों ना करें, और वो ट्रीटमेंट अननेचुरल होता था और अनहेल्दी होता था। ओके, इन दोज टाइम्स द पेशेंट वर सेंट आउट ऑफ कम्युनिटी एरिया टू गेट आउट ऑफ illness naturally or in temples outside village, so that the god will cure their illness. ओके, इतनी सुपरस्टिशन इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ था। और उसके बाद हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, ये क्या था? इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज underwent a peculiar form of suffering as a part of ritual worship. With hook pierced through their skin, they swung themselves on a wheel. अब देख सकते हैं आप, एक पिक्चर में भी, हिडन पिक्चर में भी दिखाई दे रही हैं चीज़ें। इन द अर्ली 19th century, when the European official begins criticizing Indian custom and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. Working towards change. The attitude towards women and social customs started changing from the early 19th century. The changes took place due to various reasons. और वो क्या क्या चेंज आते चले गए हमारी सोसाइटी में, क्या चेंज हुआ एकदम से? अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमंग वीमेन एंड द सोसाइटी इन जनरल as people started reading more and more. People started reading books, newspaper, magazine, leaflets and pamphlet as they were much cheaper by then. There were debates and discussions about social customs and practices which also helped in creating awareness among the people. शिक्षा बढ़ती चली गई, लोग डिबेट करते चले गए, जितनी बुराइयां थी हमारे समाज में छिपी हुई, एक दूसरे के साथ बातचीत होना स्टार्ट होती चली गई और अपने अपने विचार सभी डालने लगे। समाज के लिए क्या ठीक था, क्या गलत था, वो लोग इस चीज़ को समझते चले गए। Ordinary people could read and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues like social, political, economic and religious issues were debated and discussed by men. These discussions brought about many changes. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. Clear this one students, कि these debates, जितने भी debates हुए, were often initiated by, किन्होंने शुरू किए? इंडियन रिफॉर्मर्स। इट मीन्स जो भारत के समाज सुधारक थे, लोग समाज में जितनी भी बुराइयां छिपी हुई थी उनको दूर करना चाहते थे, सो उन्हीं को बोला गया। एंड रिफॉर्म्स ग्रुप, बहुत से उनके साथ लोग जुड़ते गए और जिससे ग्रुप बनता चला गया। Okay, so who are social reformers, students? Let we understand. Who are social reformers? Some people are described as reformers as they felt that changes were necessary in the society. कुछ लोगों ने सोचा कि चेंज, बदलाव ही हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी सोसाइटी बदलेगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। And unjust practices needed to be done away with. Then the thought that the best way to ensure these changes was to give up old practices and adopt a new way of life. और क्या सोच बढ़ती चली गई? जितने भी पुरानी रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो दूर करने की ज़रूरत है और उनके बदले में अब जीवन जीने का एक नया तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। Examples of some great reformers are
अब इनमें से कुछ ऐसे ग्रेट रिफॉर्मर्स हैं, कुछ भारत के समाज सुधारक ऐसे लोग हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। वो कौन कौन है? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई बेगम रोकेया एंड शेखावत हुसैन। बहुत से ऐसे रिफॉर्मिस्ट हैं हमारे बुक के अंदर, जिन्हें इस चैप्टर के अंदर जिन्हें हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट एंड अबाउट राजा राम मोहन रॉय। Raja Ram Mohan Roy was an Indian religious, social and educational reformer and humanitarian who challenged traditional Hindu culture such as sati and indicated the lines of progress for Indian society under British rule. ओके ये एक बहुत राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सोसाइटी में रोल प्ले किया है। वो कौन थे? वॉज एन इंडियन रिलीजियस, धार्मिक सुधारक भी थे, साथ के साथ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एंड ह्यूमैनिटेरियन, और उनके अंदर बहुत भावनाएं छिपी हुई थी सभी के लिए इक्वली। और उन्होंने ये सभी की सभी चीज़ों का सुधार ब्रिटिश रूल के दौरान ही किया एंड तभी इसीलिए उनको किस नाम से जाना गया? ही इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न नए भारत का उदय, जन्म, and also the father of modern India. Okay, and he is also regarded as the father of the Bengal Renaissance, and he along with Dwarkanath Tagore and other prominent Bengalis of the early 19th century, और इनके साथ इन्होंने इन काम को शुरू किया। ओके, एंड इन्होंने उस टाइम किस समाज की स्थापना की? फाउंडेड द ब्रह्म सभा, एंड कब की? इन 1828 में, विच इंडेंजर्ड द ब्रह्म समाज an influential Indian socio-religious reform movement during the Bengal Renaissance. His influence was apparent in the field of politics, public administration and education as well as religion. Changing the lives of widows. Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. Roy pointed out to the people that sati was not practiced during the olden days. Through his writing, he condemned the practice of sati. सती प्रथा का इन्होंने, सती सिस्टम का घोर विरोध किया, कंडेम किया। As the British were also opposed to the practice of sati, they supported Roy and law was passed banning sati in the year 1829. और जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो भी इस सती सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन को सपोर्ट किया और इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया जिसको पास किया गया। और कब ये और सती सिस्टम पर बैन किया गया, और कब किया गया? ईयर 1829 में। ओके, द अप्रोच टेकन बाय राम मोहन रॉय वाज यूज्ड by later reformers as well whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful. They tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. They then suggested that the practice as it existed or present was against early traditions. Clear this one? अब हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या जाना?
ये these are given main points. You can also note down in your notebook, students. Found Brahma Samaj when in 1828. He abolished sati and child marriage. दो चीज़ जो हमारी सोसाइटी में थी, एक सती सिस्टम और एक चाइल्ड मैरिज, इन्होंने उन पर बैन लगवाया. एंड ही एडवोकेटेड विडो मैरिज, और जितनी भी विडो थी उनकी दूसरी शादी करने के लिए इन्होंने पॉलिसी उन्होंने बनाई. इट मीन्स सोसाइटी में विडो री मैरिज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, अपना समर्थन दिया. ओके. एंड ही कंडेम्ड पॉलीथिज्म and he stood for modern education for all. Clear? And Raja Ram Mohan Roy persuaded government to abolish sati and child marriage. ओके. परसुएड का मतलब है उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको राजी किया कि वो बैन लगाए सती सिस्टम पर और चाइल्ड मैरिज पर. एंड राजा राम मोहन रॉय स्टूड फॉर इक्वल राइट्स फॉर वीमेन एंड द राइट टू प्रॉपर्टी टू वीमेन, कि औरतों को भी इक्वल राइट मिले और प्रॉपर्टी है उस पर भी इक्वल राइट उनको मिले. He was an internationalist and supported cause of freedom everywhere. And his Samaj was the first attempt to reform Hindu society. Clear, student? That's why he was known as father of modern India. अब हम सेकेंड रिफॉर्मिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन है? हमारे स्वामी दयानंद. स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद was a brilliant Sanskrit scholar and a reformer in North India. Okay, and at the young age of 14 years, जब वो 14 साल के थे, he started questioning the meaningless social and religious rituals practiced in Indian society. और जितने भी हमारी सोसाइटी में बुराइयाँ फैली हुई थी उसके लिए वो क्वेश्चनिंग करते थे सभी से. And he stood for equality for women and condemned the social evils of sati, widow remarriage and child marriage. Okay, so और दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 में. ओके. ही एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, एंड ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज. ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. ही बिलीव्ड इन infallibility of Vedas. He opposed caste system and he advocated equal rights for men and women. Clear? And a number of DAV schools and colleges were started by the Samaj all over India. और इसके बाद है नेक्स्ट रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ओके. टाइमिंग ऑल्सो गिवन हेयर 1820 से लेके 91 तक. इनके बारे में भी हम देखेंगे. स्टूडेंट्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन इंडियन बंगाली polymath and a key figure of the Bengal Renaissance. विद्यासागर वॉज अ फिलोसोफर. एक फिलोसोफर भी थे, academic, educator, writer, translator, printer, publishers, entrepreneur, reformer and philanthropist. His efforts to simplify and modernize Bengali prose were significant, and he also rationalized what and simplified the Bengali alphabet and type, which had remained unchanged since Charles Wilkins and Panchanan Karmakar had cut the first wooden Bengali type in 1780.
ईश्वर चंद्र विद्यासागर suggested that widows could remarry. इन्होंने भी ये सजेस्ट किया. His suggestion was adopted by British official and a law was passed in 1856 में ये लॉ पास किया गया and permitted widow remarriage. Many were against the remarriage of widows. They opposed Vidyasagar and boycott him. उन्होंने उनका घोर निंदा की और उनको बॉयकॉट किया, समाज से उनको बेदखल भी किया. During the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. In Madras Presidency, Veersalingam Pentulu formed an association for widows' remarriage. And girls began to go to school. All reformers felt that it was necessary to educate women in order to improve their conditions. Or Vidyasagar also set up schools for girls in Calcutta. Veersalingam established a girls' school at Dwaleshwaram and Raja Mundra. And problems faced by girls to go to school. क्या क्या problem face की उन्होंने? When schools for girls opened in mid-19th century, many people were afraid of them, and they feared that schools would take girls away from home and prevent them from doing their domestic work. Women write about women. From the early 20th century, Muslim women played a notable role in promoting education among women. Primary school for girls was started in Aligarh. Begum Ruqayya Shekhawat Hussain started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. In the 1880s, Indian women started going to university, जाना शुरू किया for higher education. And they become doctors and teachers. Many women began to write about the place of women in society. Now students, अब हम आज यहीं तक जानेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आप अच्छे से इस वीडियो को देखें एंड रीड द चैप्टर